Hello and welcome to BrainBridge UPSC. I am Vaibhav Kulshrestha and this is the answer writing program series for disaster management. आपदा प्रबंधन के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम है ये और इस सीरीज में ये सेकंड क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड ऑकरेंस explain the mechanism and occurrence of cloudburst in the context of the Indian subcontinent. Discuss two recent examples. Answer in 150 words. 10 marks का क्वेश्चन है and it was asked in 2022. बादल फटने की क्रियाविधि और घटना की व्याख्या करनी है, साथ में दो उदाहरण भी देने हैं, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में। ये क्वेश्चन है। इसके आंसर फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो द थीम इज क्लाउड बस्ट, बादल फटना। इट मीन्स इन इंट्रोडक्शन पार्ट वी विल राइट अबाउट क्लाउड बस्ट, ये क्या होता है। Within 2 or 3 lines we will explain it, then come to main body part और मेन बॉडी पार्ट में हम लोग जो मुख्य प्रश्न का उत्तर है वो देते हैं। सो मेन बॉडी में क्या पूछा है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ क्लाउड बस्ट। सो इन फर्स्ट पार्ट ऑफ मेन बॉडी वी विल राइट अबाउट मैकेनिज्म ऑफ क्लाउड बस्ट एंड सेकेंड पार्ट is occurrence of cloudburst in Indian subcontinent, means उसकी घटना क्यों हो रही है, ठीक है। तो occurrence और इसके पीछे क्या रिस्पॉन्सिबल कारक हैं, क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं occurrence of cloudburst में, ठीक है। सो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स को हम यहां पर बताएंगे, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स, and then we will provide 2 examples. And in conclusion part, we will sum up the question, sum up the answer. It means a short summary would be provided in the conclusion part. Now come to the introduction part. Introduction में हम लोग बात कर रहे हैं क्लाउड बस्ट के डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन की। So it is a sudden intense rainfall event, usually localized, where a significant amount of rain falls in a very short period, often within minutes to a few hours. Cloudbursts are typically characterized by rain rates exceeding 100 millimeter, means 3.9 inch per hour. इतना रेनफॉल यहाँ होता है। तो ये एक अचानक तीव्र वर्षा की घटना है जो बहुत कम समय में भारी वर्षा करती है। इसमें लगभग 3.9 इंच प्रति घंटे की रफ्तार से वर्षा दर होती है। तो मैंने यहाँ पर दोनों ही लैंग्वेज को कवर किया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम के बच्चों के लिए है। ना कम टू मेन बॉडी पार्ट, मैकेनिज्म ऑफ क्लाउड बर्स्ट, किस तरीके से क्लाउड बर्स्ट की प्रोसेस होता है। सो फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्टिव क्लाउड्स। क्लाउड बर्स्ट generally occur due to the rapid ascent of moist air into the higher levels of atmosphere. This moist air cools and condenses to form cumulonimbus cloud, which are capable of producing intense precipitation. Okay, so convective current means जो इक्वेटोरियल रीजन है या जहां पर ज्यादा गर्मी पड़ रही है वहां पे होगा क्या, जो गर्म विंड है, गर्म वायु है और इसके साथ साथ वाटर वेपर्स हैं, वो गर्म होके ऊपर उठने लगेगी। तो हीट का ये ट्रांसपोर्टेशन या हीट का इस तरीके से मूवमेंट करना क्या कहलाता है, कन्वेक्शन करंट है ये। दिस इज कन्वेक्शन करंट। सो कन्वेक्शन करंट जब ज्यादा बहुत तेजी से होने लगेगा तो वहां पर क्लाउड बर्स्ट होता है। सेकेंड इज ओरोग्राफिक लिफ्ट। In the Indian subcontinent, the presence of mountains regions like Himalayas and also Western Ghat plays a crucial role. When monsoon winds laden with moisture hit these mountains, they are forced to ascend. This orographic lift causes the air to cool rapidly, leading to condensation and the formation of heavy clouds. So, there are 3 types of precipitation. First is convectional current.
convectional precipitation. Second is orographic precipitation. Third is cyclonic precipitation. संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। और इसमें भी जो सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है वो ड्यू टू ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, पर्वतीय वर्षा के कारण होता है। थर्ड, हाई एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी, a high degree of atmospheric instability where warm moist air at the surface rises and encounters cooler air aloft contribute to the rapid development of the thunderstorm cells that can result in cloudburst. Fourth, microphysical process. In the cumulonimbus cloud, microphysical process such as collision coalescence means where smaller droplets collide and merge to form larger droplets. And ice crystal growth enhance precipitation efficiency, leading to intense rainfall. Then, localized nature. Cloudbursts are often localized because they are associated with small scale convective system rather than widespread weather system. This means they can occur over a very small geographical area, making them difficult to predict. So this is the mechanism of cloudburst. बादल फटने की जो क्रियाविधि है, संवहनीय बादलों का निर्माण, पर्वतीय लिफ्ट, ओरोग्राफिक लिफ्ट, वायुमंडलीय अस्थिरता, सूक्ष्म भौतिक प्रक्रियाएं, स्थानीयकृत प्रकृति, ये सारे कारण यहाँ पर दिए हुए हैं हिंदी में। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आता है ऑकरेंस इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, मींस वो कौन कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार हैं जिसके कारण ये परिघटना देखने को मिलती है, फिनोमेना होता है। फर्स्ट इज ज्योग्राफिकल फैक्टर, अनदर इज सीजनल फैक्टर। सो ज्योग्राफिकल फैक्टर में आता है हिमालय। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली Himalayan foothills, is highly susceptible to cloudburst. Combination of orographic lift, high moisture content during the monsoon season, and atmospheric instability creates favorable conditions in Himalaya. And Western Ghat also. Western Ghat along the west coast of India also experience cloudburst due to the interaction of southwest monsoon winds with the mountain range. So यहाँ पर जोग्राफिकल दो रीजन है जहां पर ये परिघटना या फिनोमेना हमको देखने को मिलता है। सेकंड आता है सीजनल फैक्टर, मॉनसून टाइम में ही हमको ये क्लाउड बर्स्ट देखने को मिलेगा। सो क्लाउड बर्स्ट आर मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग द इंडियन समर मॉनसून, जो जून से सितंबर तक चलता है। When the region receives majority of its annual rainfall, the monsoon winds bring moisture from Indian Ocean and topography of the region helps in lifting the moist air, triggering intense rainfall events. So these are the occurrence in the Indian subcontinent geographical basis पे और seasonal basis पे। ठीक है, तो भौगोलिक कारक और मौसमी कारक हो गए। इसके बाद आते हैं रीसेंट एग्जांपल्स पे। तो 2021 में उत्तराखंड के चमोली में ये क्लाउड बर्स्ट होता है अगस्त 2021 में। इम्पैक्ट क्या हुआ? द क्लाउड बर्स्ट इन चमोली डिस्ट्रिक्ट रिजल्टेड इन हैवी रेनफॉल कॉजिंग फ्लैश फ्लड एंड लैंडस्लाइड्स। द इंसिडेंट लेड टू द लॉस ऑफ लाइव्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेजिडेंट्स। What is the mechanism? The incident occurred due to the rapid ascent of moist monsoon winds along the slopes of the Himalaya, leading to the formation of cumulonimbus clouds and subsequent intense rainfall. ठीक है, तो यहाँ this is the mechanism of this recent example of चमोली। तो cumulonimbus clouds, देखिए जिसने ज्योग्राफी को कवर कर लिया है, पहले ज्योग्राफी पढ़ी है डिजास्टर मैनेजमेंट से पहले, उनके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा, क्योंकि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड क्या होते हैं, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, कभी मैं धीरे धीरे शॉर्ट वीडियोस भी मैं बनाऊंगा जिसमें आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। सेकेंड एग्जांपल, अमरनाथ केव, जम्मू कश्मीर 2022। इन जुलाई मंथ ऑफ 2022 दिस वाज हैपेंड। अ क्लाउड बर्स्ट नियर अमरनाथ केव श्राइन triggered flash flood that led to significant damage and loss of lives among the pilgrims. The sudden surge of water
caused destruction along the pilgrimage route. What was the mechanism? Cloudburst was caused by the interaction of monsoon winds with the mountainous terrain of the region, leading to rapid cloud formation and intense precipitation. So these are the two recent examples, चमोली उत्तराखंड और अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में. तो उसके बारे में मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है. जब भी उदाहरण आएगा तो उदाहरण में आपको ये बताना है कि वो घटना कब हुई. जैसे इससे पहले वाला प्रश्न था जहाँ पर डैम फेल्योर, बांध के फेल होने की घटना थी, तो उसके भी दो एग्जाम्पल पूछे हुए थे. तो वहां पे आपको डेट बतानी है, उसका इफेक्ट बताना है, मीन्स क्या प्रभाव हुआ, और क्रियाविधि मैकेनिज्म भी बतानी है कि बेसिकली हुआ क्या था. ठीक है, तो ये उदाहरण इस तरीके से पूरे होते हैं. ना कम टू द कंक्लूजन पार्ट. These examples highlight the destructive potential of cloudburst in Indian subcontinent, which emphasize the need for improved forecasting, early warning system, and preparedness measures to mitigate the impact of such events. तो ये जो उदाहरण है भारतीय महाद्वीप में बादल फटने की विनाशकारी क्षमता को दिखलाते हैं, उजागर करते हैं, और ऐसी घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिए हमें पूर्वानुमान, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और तैयारियों के उपाय में सुधार की आवश्यकता पर बल देना चाहिए. So this is the conclusion part and this is the model answer of this question. If you like our video, please like, share and subscribe. This is your only contribution जिसके मुझे डिमांड है. ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.